Now we will see infertility and assisted reproductive technology, ART. Okay. So first let's understand the concept of infertility. So what is infertility? Fertility is what? The fertilization concept, fusion of male, the basically formation of zygote, male sperm, female ovum fuse होके zygote बना रहा है, वो concept. So infertility is what? There is a failure to do that. Okay. So failure to conceive, that is to have offspring, since 1 to 2 years. It's a big time span. Okay. In spite of regular unprotected coitus. Coitus, you all know, is the actual sexual reproductive act. That in spite of having unprotected coitus is what? Without any contraception. If intercourse is seen, still there is no conceiving, still there is no formation of offspring, no pregnancy, means there is some issue. And what is that term called? It is called as infertility. A very important term associated. इसी के साथ साथ एक term है जिससे बिल्कुल confuse नहीं करना है इससे. That is sterility. Now what is sterility? The complete inability. The complete inability to produce offspring. So you can say that infertility is relative sterility. ठीक है. स्टेरिलिटी के लिए तुम कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है, बट इनफर्टिलिटी के लिए है. There are medications, there are certain treatment protocols which can be followed and that couple can have babies. So वही treatment protocols हमें आगे देखने हैं. Sterility में complete inability. There is no scope for conceiving at all. Okay. Now let's see the causes for infertility. पहले देखेंगे causes in males. What can be the possible causes? ठीक है, सारे नहीं होते, इसमें से कोई एक cause होता है which has resulted in infertility. क्योंकि infertility can be either because of the male or because of the female, and at rare times it is because of both. Male में भी issues है, female में भी issues है. Okay. So males में क्या हो सकता है कि normal sperm count होता है, normal sperm semen जो है, that amount is also range fixed है, right? It's in ml 2.5 to 5 ml तक the content is there. उसमें sperms भी कितने होते हैं? Millions. 200 to 300 millions of sperms are there in that single egg, one amount of 2 to 5 ml का. It's in millions. So either what can happen? उसका number. So few sperms compared to what? The required. Few sperms are released. What is that condition? That is oligospermia. Oligo is less, तो sperm count कम हो गया, तब भी problem है because there are very low chances for the sperms to reach the desired location जो है at the region of fallopian tubes. Okay, तो पहुंचे ही नहीं तो fertilization नहीं होगा. या फिर complete और near absence, मतलब बहुत ही कम, near absence of sperms, that is called azoospermia. ए लग गया मतलब वो चीज एब्सेंट है. so, नियर और कंप्लीट एब्सेंस की बात हो रही है, मतलब तो कोई स्कोप ही नहीं, स्पर्म्स ही नहीं रहेंगे, सो फर्टिलाइजेशन का स्कोप कितना? 0. या फिर लो मोटिलिटी, स्पीड भी उनका स्पीड भी बहुत होना जरूरी है, सो दैट ऑल
and maximum of them can reach the vagina, then cervix, then uterus, then fallopian tubes, right? So speed भी होना जरूरी है. So low motility अगर है sperms का condition asthenozoospermia. See हम क्या देख रहे हैं, all possible conditions, ठीक है, जिसकी वजह से infertility हो सकता है. Now last is what, ये terms point of view, structure of sperm only changed, malformation हो गया है sperm के structure में, then to it is not applicable, it is teratozoospermia. ओके, तो ये सब टर्म्स है, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है बाय फ्रेमिंग क्वेश्चन. सो यू शुड बी वेरी क्लियर. ओलिगो इज व्हाट, फ्यू, मतलब स्पर्म काउंट कम है. एज़ोस्पर्म मतलब बिल्कुल ही नहीं है, नहीं के बराबर. एस्थेनोज़ोस्पर्म मतलब स्पीड कम हो गया, मोटिलिटी कम है, या फिर पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, मैल्फॉर्मेशन ही हो गया स्पर्म में, तो दैट इज टेराटोजोस्पर्मिया. एनी ऑफ दीज कंडीशंस कैन रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या हो सकते हैं रीजंस? क्रिप्टोर्किडिज्म, दैट इज व्हाट, ये देखा हुआ है ऑलरेडी. फेलियर ऑफ testes to descend, right? From the abdominal cavity they descend and they come out, they hang out of the abdominal cavity in the scrotum. और अगर ये नहीं हुआ, abdominal cavity में ही रह गए, that is cryptorchidism, right? And और क्या क्या reasons हो सकते हैं? Alcohol consumption से spermatogenesis पे इफेक्ट हो सकता है. द मेल टेकिंग एंटीडिप्रेसेंट्स, राइट? तो मेनी रीजन. स्मोकिंग हुआ, ब्रोंकियल इन्फेक्शन हुआ, राइट? या फिर द वास डिफरेंस, जहां से स्पर्म्स आते हैं, द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज ओनली ब्लॉक्ड, तो स्पर्म्स आगे बढ़ेंगे नहीं. हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर ज्यादा होना. नाउ स्क्रोटम में कंपेयर टू द एब्डोमेन 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, विच इज आइडियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. अब हाइपरथर्मिया कंडीशन इज व्हाट, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा ही है, सो दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर इन द स्क्रोटम, सो दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं हुआ तो स्पर्म कहां से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. ओके, सो दैट वाज व्हाट the reasons, the causes for infertility in males. Now let's see causes for infertility in females. अब females का कैसा है? एक menstrual cycle में one ovum is released from either of the two ovaries. एक टाइम ये ovary alternate ऐसे release होते हैं ovum, right? So इससे कम अगर ova release हुआ, then what is the condition? Less ova released. This is oligo-ovulation. No ova released at all. No ova. Or near absence is what? Anovulation. राइट. कॉर्पस ल्यूटियम ही अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ. नो प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. तो इससे रिलेटेड हार्मोन कौन है? प्रोजेस्ट्रॉन अच्छे से रिलीज नहीं होगा. तो ये एंडोमेट्रियम को अच्छे से बनाएगा नहीं. दैट इज एन आइडियल सिनेरियो, क्रिएट ही नहीं होगा फॉर इम्प्लांटेशन. तो जाइगोट इम्प्लांट होगा क्या? बना भी तो नहीं. यहाँ ओलिगो रहे चाहे एनोव्यूलेशन हो, विच आर द हार्मोन्स एसोसिएटेड अपने गोनाडोट्रोफिन्स, FSH, LH, ये अच्छे से काम नहीं किए तो ओवा रिलीज होगा क्या? नहीं. ओवा ही नहीं रिलीज हुआ तो आप बात आगे तो प्रोसीजर्स का कोई स्कोप
ही नहीं है, राइट। और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? फेलियर ऑफ fallopian tubes to receive ovum, मतलब ओवम रिलीज हो गया बट फैलोपियन ट्यूब्स को वो कलेक्ट नहीं कर पाए, द फिम्ब्रे, देन टू इट विल रिजल्ट इन व्हाट? नो फर्टिलाइजेशन, नो इम्प्लांटेशन, राइट। और है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, मतलब प्रोलैक्टिन कंटेंट अगर ज्यादा हुआ then too that can be a cause for infertility. कैसे? प्रोलैक्टिन क्या करता है? जब भी वो एक्टिवेटेड रहता है, वो फंक्शन में रहता है, इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एफएसएच-एलएच। अब एफएसएच-एलएच का एक्टिविटी इनहिबिट करेगा तो ओव्यूलेशन होगा क्या? नहीं। सो अगेन दैट विल बी अ रीजन फॉर व्हाट? इनफर्टिलिटी इन फीमेल। सो दिस वर्ड लंबा चौड़ा है बट वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी दैट वर्ड, दैट इज हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। ओके, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, इसमें प्रोलैक्टिन कंटेंट बढ़ चुका है, प्रोलैक्टिन हैज इंक्रीज्ड। ओके, और क्या रीजंस हो सकते हैं? फाइब्रॉइड इन यूट्रस, फाइब्रॉइड इज व्हाट? जो वाइट फाइबर्स है उसका एक्यूमुलेशन होके एक स्वेलिंग बन चुका है इन यूट्रस, विच विल मेक द यूट्रस नॉट suitable for the procedure of what? Implantation. So all these are reasons for what? Resulting in infertility, let it be males or females. So infertility का कोई solution है क्या? Yes. What is that solution? It is ART. What is ART? Assisted reproductive technologies. अब due to advancement in science, there are assisted means थोड़ा सा help है required, right? To go for conceiving, to go for having babies. So there are of two types, ART, दो type के हैं. It is in vitro and in vivo. In vitro are procedures done outside the body. In vivo are procedures done inside the body. So accordingly इसी के अंदर देखना है, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन इस पे यही आता है, कौन इन विट्रो है, कौन इन विवो है, बिकॉज देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज इन दीज हेडिंग्स. So you should be very clear in vitro कौन है, in vivo कौन है, right? So let us see first in vitro वाले, जिसमें पहला है ZIFT, ZIFT शॉर्ट फॉर्म भी तुम याद रख सकते हो, that is zygote intra fallopian transfer. zygote इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. अब नाम में ही है कि जाइगोट हमें ट्रांसफर करना है एट द लेवल ऑफ व्हाट? फैलोपियन ट्यूब्स. फिर जाइगोट कहाँ बन रहा है? हम इन विट्रो की बात कर रहे हैं, जाइगोट बाहर बन रहा है. बाहर मीन्स वेयर? इन द लैब, राइट? सो ये कैसे बनेगा? मेल डोनर. अब ये क्या है? डोनर से भी लिया जा सकता है स्पर्म, या फिर द हस्बैंड वाइफ, इट्स अ कपल, राइट? सो द हस्बैंड और द डोनर, या फिर फीमेल में द वाइफ और द फीमेल डोनर. सो द मेल डोनर और द मेल इटसेल्फ और हिमसेल्फ, उसका क्या? स्पर्म
एंड सेम फीमेल डोनर या द फीमेल herself say ovum. So both are taken and formation of zygote takes place outside in the lab. लैब में फ्यूजन होता है एंड जाइगोट भी लैब में ही बनेगा, बट प्रिसीजन है इसमें दैट जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो स्टेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें 8 सेल्ड स्टेज, जो सेल्स है दोज आर द ब्लास्टोमेयर्स, तो वो सिर्फ 8 सेल स्टेज में जैसे ही पहुंच जाएंगे देन दे हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू व्हाट इज द नेम fallopian. So they have to be transferred to the level of what? The fallopian tubes. तो fallopian tubes में जाने के बाद आइडियल प्रोसेस क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस ह्यूमन फीमेल में, दैट फ्रॉम जाइगोट जो है वो उसी लेवल पे बनता है एंड देन आगे प्रोसेस होके वो जाता है टिल द लेवल ऑफ यूट्रस और फिर इम्प्लांट हो जाता है. सो व्हाट इन दिस प्रोसेस इज डन, फैलोपियन ट्यूब लेवल पे जो जाइगोट और इनिशियल एम्ब्रियो स्टेजेस बनते हैं वहां हम उसको प्लेस कर देंगे एंड देन नेचुरली बॉडी ने वो एक्सेप्ट अगर कर लिया अच्छे से तो वो आगे के स्टेप दैट इज तब ब्लास्टुलेशन हो चुका है, अब गैस्ट्रुलेशन स्टेज के लिए वो जाइगोट विद दैट इनिशियल एम्ब्रियो स्टेज पहुंच जाएगा. ओके, सो इसका क्या होगा, फ्यूजन हो गया, क्या फॉर्म होगा, जाइगोट, वेयर in the lab and then 8 cell stage embryo, very important. तभी तुम फैलोपियन ट्यूब कंसिडर करोगे. अगर इससे ज्यादा सेल स्टेज वाला एम्ब्रियो हमें इम्प्लांट या प्लेस करना पड़ा, प्रोसेस का नाम ही चेंज हो जाएगा. दैट्स द नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच वी हैव टू सी. सो 8 cell stage embryo is placed in the fallopian tubes of the female concerned. This is zift, zygote. प्लेस कर रहे हैं हम एट व्हाट लेवल, नाम में है एट द लेवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब. क्वेश्चन किस पे आए हैं, विच सेल स्टेज, सो इट इज 8 सेल स्टेज एंड एट व्हाट लेवल, ऑब्वियसली नाम में ही है, फिर भी पूछा गया है, ये नीट लेवल क्वेश्चन है एट द लेवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स. अब नेक्स्ट इज IUT. यू आ गया है, सो दिस इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. सिनेरियो सेम, जाइगोट बाहर बन रहा है बट द सेल स्टेज हैज चेंज्ड. IUT में सेल स्टेज होगा 32 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो. ये स्टेज पे आ गया है तो प्लेस कहां करना पड़ेगा, प्लेस्ड इन यूट्रस. सो बॉडी विल एक्सेप्ट इट. यूट्रस लेवल पे अगर एंडोमेट्रियल लेवल पे एक्सेप्टेंस हो गया है तो वो जाइगोट द एम्ब्रियो स्टेज will get implanted and further procedures जो normal female में होते हैं that will start. Okay. थर्ड क्या है इसका, ICSI, that is intra cytoplasmic sperm injection. Intracytoplasmic sperm injection. Now इसमें क्या हो रहा है, the sperm, now same sperm is either taken from the male donor या फिर the male himself. Sperm is directly injected into the cytoplasm of ovum in lab. ये प्रोसीजर लिटरली एक डिश पे होता है. ओके, of course it's a very
a proper room which is maintained for all these procedures. Okay, and then zygote formation जो हुआ है वो place किया जाएगा in the concerned female. Okay, so कौन से है? In vitro, ZIFT, IUT and ICSI. Okay. Next, now we will see the in vivo procedures. अब हमने इन विट्रो देखा. इन विट्रो का कॉमन टर्म क्या है उसके लिए? टेस्ट ट्यूब बेबी. यही है कंसेप्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का, राइट? That the procedure is done outside and zygote and the initial embryo stage is placed inside the concerned female. And आगे के प्रोसेस अगर बॉडी ने एक्सेप्ट किया, बार बार मैं बोल रही हूँ, अगर बॉडी ने एक्सेप्ट किया तो then only the procedures आगे नेचुरली होने हैं ना. तो बॉडी एक्सेप्ट करेगी तो आगे के प्रोसीजर्स नेचुरली हो जाएंगे. तो इनको कंपेयर टू अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल, इन फीमेल्स का मॉनिटरिंग हॉस्पिटल लेवल पे ज्यादा होता है to keep a track. Okay, so next is in vivo. The first one being GIFT. वो क्या था? ZIFT. ये है गिफ्ट. It is gamete intrafallopian transfer. अब इसमें गैमेट होने वाले हैं ट्रांसफर. नाउ गैमेट इन द सेंस विच गैमेट? द ओवम फ्रॉम द डोनर फीमेल और द कंसर्न फीमेल हरसेल्फ. हो सकता है ना कि ओवा रिलीज होते हो ओवरीज से, बट जो लोकेशन है वहां तक पहुंच नहीं पाते हो. सो ये क्या है? दिस प्रोसीजर विल चैनलाइज द ओवम. सो ओवम फ्रॉम द डोनर फीमेल और द फीमेल हरसेल्फ इज प्लेस्ड इन फैलोपियन ट्यूब्स. अब ये कहाँ प्लेस करेंगे? जहां नॉर्मली ओवा या ओवम वेट करता है फॉर द स्पर्म टू कम एंड रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट बनाएगा और फर्दर यूटेरस तक जाके इम्प्लांट होगा. नाउ आफ्टर डूइंग दिस द नॉर्मल प्रोसेस विल टेक प्लेस. नॉर्मल प्रोसेस ऑफ व्हाट? Normal process of coitus. The male inseminating the semen in the female tract, which is having now the ovum, and then there will be a wait period in which, if at all fertilization takes place, it will take place, resulting in the formation of zygote and then implantation in uterus. Okay, so ये कैसे procedure inside the body हुआ, right? सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में ओवम पहुंच गया, आगे का प्रोसीजर सब फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर, फ्यूजन प्रोसीजर इनसाइड द बॉडी हुआ. वहां क्या हो रहा था? इट वाज इन द लैब एंड ओनली व्हाटएवर इज फॉर्म्ड वाज प्लेस्ड इन द डिजायर्ड लोकेशन. यहाँ बॉडी के अंदर हो रही है चीजें. सो इट इज इन वीवो. एंड नेक्स्ट इज AI, that is artificial insemination. Insemination is what? The process of release of the semen, right, in the female tract. So if the male is not able to ejaculate or inseminate till the desired location, that can be artificially done. उसके reasons हमें पता है, कुछ भी हो सकते हैं reasons, azoospermia, oligospermia, anything can be the reason, right? So artificially female reaches the female tract and then what will happen? Artificial is able procedure तो पूरा अंदर होगा fertilization का. Normal process of fertilization follows. Okay, so ये जो दो है, that is GIFT and AI. Short form पे भी questions आते हैं, so you should be well versed with the short forms also. Okay,
सो इन विट्रो में कितने हैं? इन विट्रो में 3 है, इन वीवो में 2 है. ओके, सो सरोगेसी इज अ कंसेप्ट विच यू शुड नो हियर. सरोगेट मदर के बारे में भी सुना होगा. सो ये जो हम बार बार बोल रहे कंसर्न फीमेल, सो दैट विल बी द कपल कंसर्न, द फीमेल ऑफ द कपल कंसर्न, या फिर दे डोंट वांट द फीमेल टू हैव द बेबी फॉर 9 months और ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस दे आर नॉट एबल टू डू दैट. सो ये जो जाइगोट या एम्ब्रियो स्टेजेस हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट कैन बी डन इन अ कंप्लीटली डिफरेंट फीमेल which will take care of the embryo then fetus for the remaining 9 months and will deliver the baby, and then the baby will be officially given to the couple. That is the concept of surrogacy. तो surrogacy में पूरा legal paperwork होता है so that the female cannot claim the baby. It's what a embryo, वो कोई भी सेल स्टेज हो, इज प्लेस्ड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट फीमेल which will complete the full term of pregnancy. तो ये complete करेगी full term pregnancy का. She will deliver the baby and then directly hand it over to the couple who has made her the surrogate mother. Okay, okay, understood. So there are certain test tube babies. जो first ones है वो हमें याद रखने हैं. Like the first test tube baby ever was experiment जो सक्सेस हुआ था वो हुआ था 1978. This is the patient, the baby born Louis Joy Brown. एंड अगर हम इंडिया की बात करें, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया, शी वाज नेम्ड दुर्गा. ओके, okay, so that was all about infertility and ART. Now let's see certain special points. 2 special points है जो हमें पता होनी चाहिए. Again, they are not mentioned in NCERT, but एम्स लेवल क्वेश्चन पैटर्न के लिए हमें बस ये देखने हैं. यू शुड बी जस्ट अवेयर ऑफ दीज टर्म्स. कि कुछ ऑप्शन में भी आए तो तुम्हें एलिमिनेट करते आना चाहिए, इसीलिए हमें देखना है. बिकॉज एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू बी मास्टर्ड टू हैव अ रियली गुड स्कोर इन नीट. ओके, सो स्पेशल पॉइंट्स. फर्स्ट है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉल्ड एज नोसीपॉल. क्या है ये? इट्स अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल obtained from cotton seeds. ठीक है, इसका डोसेज क्या है? 10 to 20 milligram per day for 3 months. फिर इसका डोसेज कम हो जाता है, बट ये हो चुका है बैंड. इट्स बैंड बिकॉज ऑफ द वेरी डेंजरस साइड इफेक्ट दैट इज azoospermia. We saw what is azoospermia, right? Near absence of sperms, near or complete absence of sperm हो गया इसका major side effect. So Gossypol is not used. And next is, which you already know, that is सहेली. सहेली का और एक chemical term है जो हमें याद रखना है, that is centchromen. Okay, बाकी कुछ चीजें तो हमें पता है, जैसे ये नॉन स्टेरॉइडल है, ये एक वीकली पिल है, वीक में एक ही बार ली जाती है. लाइन ऑफ एक्शन इसका और एक बार देखना है कि क्या इनहिबिट करता है. इट इनहिबिट्स
इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा, बट डज नॉट इनहिबिट ओव्यूलेशन। ओके, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन, बट ये ओव्यूलेशन होने देता है। ओवा जो है वो रिलीज होगा, ओवम विल बी रिलीज, बट इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, यूट्रस को अनसुटेबल कर देगा फॉर द इम्प्लांटेशन। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्पेशल पॉइंट्स एंड दैट वाज ऑल अबाउट this session.